Yes. Now let's start the session. So this is our initiative QA Labs for You, and here we are presenting this free mentorship program. Season 1 is already going on from 5th of May, where we have conducted one session for this QA career path, then interview preparation. After that, we have conducted one mock interview, and some other mock interviews are already planned. Now, right now, we are starting from today onwards. We are going to start this automation testing training. So before going further in the training part, I just want to let you know about myself. My name is Shrikant Pandey, and I have started my journey as a manual test engineer. Later on, I have worked on the automation tool where I have provided solutions for desktop application, Salesforce applications, and the Workday application. And then I have worked on one project where I have take care of the web automation. Currently I am taking care of this backend testing, where I usually take care of APIs, database, and the API automation thing. So this is all about me, all about QA Labs, why we have initiated, what is the objective of this initiative. Now I think we can discuss about each of you little bit, at least your name, experience, and your roles and responsibility, whatever you want to share with us. Okay, then we can start the session. So who want to go first? Hi, myself Rajesh Gupta. Yes. I have total five. Hi Rajesh. Hi. Actually, what is your name? Is mentioned QA Labs for you. So my name is Shrikant Pandey, and I have started this initiative QA Labs for You. Great. So hi Srikant, hi Srikant and everyone. My name is Rajesh Gupta. I have total 5 years of experience and Okay. purely works in manual testing till now. Okay. So you're not aware about the automation about Java, right? No, You are looking for the knowledge transfer, like from where right, you can get right, the knowledge and then start building your automation framework. right. Yes, Okay. correct. Okay, that's fine. Next one. Yeah, hi Shrikant. This is Hi. Raj, Hi. and I'm having total 2.5 years of experience, Okay. and till now I'm working as a QA manual engineer, Okay. and my roles and responsibility will include to write a test case and to execute them. So I'm apart from this, I also having a basic knowledge of Java and Selenium, but not having expertise in them. Okay. So I'm looking for how to learn about more about Java and Selenium. Okay. Fine. So I think this particular initiative is also beneficial for you. Okay. Right. Welcome, Raj. Next. I think we have some more participant. Yes. Nidhi. Hello, Shrikant. Hi. Yeah. Hello, Shrikant. Am I audible? Yes, you're audible. Yeah, okay. So thank you so much for this training, first of all. And hello, everyone. My name is Nidhi, and I have total 5 years and 5 months experience in different technologies. Like I worked on manual testing, mobile application testing for Android and iOS as well. Currently, I'm in Accenture Technologies and working on API testing, and looking forward with the help of my friend Shrikant in Java and Selenium. So I Okay. wanted to learn Java and Selenium. So I would like to thank you so much for this training session, because I wanted to move in automation session and automation project related technologies. So yeah. Okay. Thank you, Nidhi. And I will accept you. Thank you. Once we will finish this entire session, Java and the Selenium, so that you will get some knowledge and like you can build some automation framework. Okay. Yeah, definitely.
Okay. So next, So I wanted to start with zero. So Okay. so you can consider me as I am on zero level for Java and Selenium. So I wanted to learn everything. Okay, okay, that's good. This session is for like becoming from zero to hero. Okay, so Yeah. yes. So now, Honey, one more participant with us, Honey Gupta. Yeah, hi. Hi, you are Yeah, audible, so Honey. yeah, I'm audible now. Yes. So, Srikanth, like I'm having a 4-year experience in manual testing, and I'm completely new for automation, and it's a good initiative by you, Okay. and it's very much look helpful for me. Yes, and we are like trying to give these kinds of sessions on weekend basis so that some other professionals who are not right now with us in this session, they can also get the idea how they can proceed further in their future. Like if they are in the manual, how they can move into the automation, what all things they need to understand before going on the automation side. Okay. Yeah. Okay, fine. So I think अब start करते हैं आज के topics. Okay, and I think everyone is comfortable in Hindi and English both, right? There is no language barrier. Yeah, comfortable in both. Okay, okay, fine. Okay, so today's topics are, first of all, in this session we will discuss about Java introduction, then Java environment, discuss about this Java environment thing, then basic syntax, variables, types of variables, data type, access modifiers, operators, objects and classes. These are some topics which we will cover in this particular session. I know that everyone is not familiar with all these topics. All are new. All are like from the manual background. Now everyone want to move into the automation. So हम discuss करेंगे each and every topic, whatever best possible examples के साथ. और I think everyone has done the setup IDE, right? I have shared the guide. अगर किसी ने नहीं भी किया है तो टेंशन की बात नहीं है. After this session we will like sit back and help you out to do the setup so that we can do the hands on. I don't want that we should only listen and I will just give the presentation. After that you just note down every points. Okay, so it's like I will give the session, you will take the session, you will start implementing things from day one. Okay, so this is the Java introduction. I think most of you are already aware about the Java, but from where Java started, we can say that the Java was actually developed in 1991, and right now we all know that it is acquired by Oracle, and in actual it was developed by James Gosling and Patrick Naughton. It is a simple programming language, you can say. Right now, as you all not aware about different programming languages like Python or Java or Ruby, so we can consider it as easiest programming language, and I hope you will learn and you will feel that this is the easiest one. If we will talk about the features of Java, first of all, these are the top features right now mentioned in the presentations. First of all, this, it is a simple language because syntax is very simple and clean and easy to understand. Second is object oriented. Everything whatever you will get in this particular programming language, you will get in the form of objects. Then it is a robust because there is a option, I can say there is a error check at every time, like at the runtime, at the compile time. We will discuss each and every point in detail when we will do the coding, I can say, because right now you are not getting the things how it is simple, how it is object oriented, but I will give you the example from where you can get the idea. These are the objects and what is the syntax, everything you will get later on in this particular session. Okay, and need not to write each and everything right now. I will share this particular session along with you so that you guys can take your time, you can revisit the session, you can list down all the pointers which is required as per you. Okay, so just focus on this particular session, and I don't want that this session should be one way communication. You can ask whatever
coming in your mind right now. Okay. Next is this Java is a secure one. Everyone is already aware about this thing. I think all IT professionals are already aware that this Java language is a secure one. It contains a security managers that defines the access of Java classes. And if we have some security manager already in our programming language, then that would be a very secure language. Next one is the platform independent. So yes, Java is a platform independent. How we can say that Java is a platform independent? It's like we will write the code in a particular Windows machine, and if you want to execute it on the Mac or Linux, you can. It is possible in Java. How it is possible, I will let you know. Okay. Apart from these features, Java also provide multi-threading, and it has high performance as compared to other languages. Okay. Now moving further, before moving further, we just need to understand what are the prerequisites for the Java. I think in my guide, what I have shared with you for the installation purpose, I have shared that please install JDK, right? So why JDK is required? What is the need of JDK? So this is the particular diagram here. You can see what JDK actually contains, but this is the theoretical thing. We just need to visualize why JDK is required. So JDK contains JRE and all the compilers, debuggers, whatever is required for the development as well as for the execution. We are going to develop automation framework. Shrikant, sorry for interruption. I have one question. Yes. So, is there any version for JDK? No, not like that. We can use anyone, and we can like try. Right now, Open JDK is also available, so we can check it. But we generally prefer whatever is the latest one. So, if I am downloading 16.0.1, is it okay? Yes, I think it will work for you also. And if it is not working, we can sit back and check what is the exact problem. Okay, but Yeah, right yeah, now, it is not a concern that this particular version is only applicable for writing the code or execution of the code. Okay. Okay, got it. Okay, so JDK is actually required for execution and development both. So right now we will like execute the particular program, and for executing the program we have to write the program, right? And in like while doing the automation, we will make our framework, we will write the script, then execute the scripts. So it means like we will do the development, then we will execute it. So for development as well as for the execution, for these two things we need JDK. If we are only concerned about we are only interested in execution part, we can do it only with the help of JRE. So that's why I told you that please install JDK. And here is a exact definition. I can say that JDK is abbreviation for Java Development Kit, which includes JRE, as I already told you. And it has compiler, various tools which are actually required for development and execution of Java program. When you will download the JDK, JRE is already downloaded along with it. I think in the new version, we are not able to see the exact folder like from where this JRE is like downloaded. But earlier, I remember that whenever we download this particular JDK, it will also download the JRE folder. I think in the latest version might be it is already inside it, or somewhere it is hidden. So you can also check inside your folder that inside the JDK we have JRE or not. In order to create, compile or run program, you need to JDK installed on your computer. So this is the prerequisites. And after that we have to set the Java home, and this particular thing I have already told you that we have to set the path so that our I can say ID can get the path of the JDK, and whenever we do the execution of the program, we can easily execute it. Now some points about JRE. JRE stands for Java Runtime Environment, which is basically to support Java applications at runtime. It means for the execution purpose, we need JRE. Runtime, it means that we are interested in the execution part.
JRE is a software package that provides Java classes, libraries, Java virtual machine, that is JVM, and other components that are required to run the Java application. JRE environment is only to run, as I already said, not for the development. And Java program or application on your machine, JRE is only used by them who only wants to run the programs. So I think now you are clear with the JDK and JRE, why we need JDK and why we need JRE, right? Shall I proceed further? Yes. Yes. Okay. So now JVM is a virtual machine that provides a runtime environment in which our bytecode can be executed, and JVM is a part of Java runtime environment. It is not like we can download it separately. Okay, so this particular diagram I will explain you. I will give you the idea from code perspective also. So first of all, we have Java program, then we will compile it. Once we will compile it, one bytecode will be generated, and that bytecode will be executed by JVM and it will give the output. Okay, now we have to understand about this particular flow diagram. So for that, I can show you my ID. So this is my ID. I think ID is visible to you or not? Not visible, Shraddha. Not visible. Okay, just hold on. Not visible. Okay. Not an issue. Now it is visible. Okay. So this is my ID. Okay, and there are a couple of classes which I have like added. Now I will add another class for you to explain you about the Java code, what we discussed about the bytecode and how it will work. So first of all, we can say test 22nd May. This is our class. Right now, this is our class. Inside this, I will explain each and everything. Okay. So this is our Java code. Okay. This is our Java code. Whatever we discussed earlier. In this way, we will like create our program and then execute it. So right now you can see this particular file is, if we see the extension, its extension will be .java. We can see somewhere properties we have. So actually when we have created the file, we have like selected this Java class, right? If you remember, and till now we don't have any dot class. So bytecode is a dot class extension. Right now you can see these are the classes having dot class extension. So these all are the bytecodes for different classes. We can like share these particular bytecodes with you and you can execute it in your machine. Maybe machine will be Linux, maybe like Mac, it will execute it. So but right now this test 22 May, this file doesn't have any bytecode. You can see here, right? Now when I will try to execute it here, when I will try to execute it, you can see it. After this build is going on, you can see test 22 May dot class is created, right?
So this is the bytecode. Shrikant, one Yes. question. How to get the dot class extension? So dot class extension is not created by us, first of all. Okay. So if I am clicking on new, so I have to click on new file, is it? Yes, you have to click on here, click on new, then you have Java class. But I'm not getting Java class under new. I'm getting file, directory, HTML file, something Okay, like that. in your ID, right? Yeah, in my ID. Okay. So we will check it after this session. Okay. Right now you can Okay. you can focus on this particular topic, and later on Yeah, we sure. will check. Yeah. And So- one quick question. Yes. सपोज जो आपने क्लास फाइल बनी ओपन बनी है, हाँ, तो उसको मतलब अगर हम किसी मशीन पर रन कर सकते हैं, बट उसमें JRE होना चाहिए, है ना? करेक्ट। एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए हमें JRE रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ये इस फाइल का बस मतलब ये है, सेंस ये है कि हम इस पर्टिकुलर फाइल को अगर हम शेयर करते हैं किसी के भी साथ, XYZ, और उनके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आइदर इट्स अ लिनक्स, मैक, विंडोज, इट विल एग्जीक्यूट इट, एंड फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस ओनली वी नीड JRE. सिंपल. But JRE होना चाहिए, like JRE within JDK हो जाता है, या I have to download JRE separately? अगर आपने JDK डाउनलोड किया है तो वो इंटरनली हाँ। JRE डाउनलोड कर देगा आपके लिए. Okay. So ठीक I है? have downloaded JDK, तो JRE का अलग से करने का नहीं है, right? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इवन मैंने भी सेम यही मेथड फॉलो किया, JDK इंस्टॉल किया एंड देन लाइक पाथ सेट करके, और ये एग्जीक्यूशन आपको जो मैंने अभी यहाँ पे शो किया. सो JRE इनबिल्ट है अगर आप JDK डाउनलोड करते हो. सेपरेटली अगर आप JRE डाउनलोड करते हो तब फिर आपके लिए JDK नहीं होगा. इन दैट केस माइट बी यू आर नॉट एबल टू लाइक डू द डेवलपमेंट पार्ट, whatever we are right now doing. Might be you will get some errors. Okay. Okay, fine. So I think this particular thing is now clear, and we will like discuss about this particular program in next slides. Okay, back to the slide. So यहाँ तक clear हो गई चीजें. ये जो हमारा particular program का working flow था, उसमें हमने क्या किया, पहले हमने जावा प्रोग्राम बनाया, उसको कंपाइल, जो भी हमने एग्जीक्यूशन में रन बटन पे क्लिक किया, उसने बाइट कोड जनरेट किया हमारे लिए. इंटरनली JVM ने उसको मशीन कोड फॉर्म में करके हमें आउटपुट दिया. आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा होगा, ये फर्स्ट सेशन हमने यहाँ पे लिखा था, राइट? Yes. Okay, fine. Okay, I think. श्रीकांत, ये जो आपने जो ओपन लिखा हुआ है जावा बाइट कोड, ये इसे वो क्लास फाइल है या फिर ये मशीन कोड जो बनता है उसे वो क्लास फाइल है? डॉट क्लास जो फाइल होती है उसको बाइट कोड बोलते हैं. हेलो. हाँ, हेलो. आपकी वॉइस नहीं आई थी, क्या बताया? डॉट क्लास फाइल जो होती है उसी को बाइट कोड बोलते हैं. अच्छा. ओके, यहाँ पे we have some definitions. You can see the process of checking the code for syntactical errors or mistakes, data type mismatch, or checked exceptions. If there is any compilation error occurred, then programmer need to rectify the error in the code. इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है? अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूं, ठीक है, कोई भी गड़बड़ करता हूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है? यस. सो यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्टिकल मिस्टेक इंटेंशनली की है. यू कैन सी यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट? सो इस सिचुएशन में प्रोग्रामर को खुद ब खुद पहले ही इसको रिजॉल्व करना होगा. इट्स नॉट लाइक कि हम एग्जीक्यूशन कर दें उसके बाद हम उसको रिजॉल्व करें. ये सिंटैक्स बेसिस पे, सिंटैक्स लेवल पे ये मिस्टेक है. डेटा टाइप मिसमैच हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंटेंशनली कर रहा है. सो इसको हमें रिजॉल्व करना होगा. अगर आप यहाँ एरर देखना चाहते हो तो यहाँ देखो, चेंज वेरिएबल a टाइप टू स्ट्रिंग, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल एक्सपेक्टिंग इंटीजर एंड आई एम प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग.
Okay, so these kinds of things we have to make sure, and programmer has to rectify it before the execution. So I think this particular line is also clear. One query. What is the difference between that runtime error and runtime exception? I'm not Okay, able to understand. okay. So runtime, it's like whenever we execute the program, first of all, this is the runtime thing. Now runtime error and runtime exception. So runtime error occurred due to some configurations, we can say configurations in terms of our system, or like some configuration we didn't do it correctly. And the exceptions, like we have checked exceptions and unchecked exceptions, like we can say null pointer exception, or we can say this IO exception or timeout exceptions. So these kinds of exceptions, so exception and error, these are the two different parts. For exception, we have to like handle it with the help of exception handling concept. And for the error, runtime error, we need to like configure our system, I can say. Okay, so once we have provided that integer a equals to Shrikant, is it runtime error? Okay. So runtime, Nidhi, right now we haven't executed. Okay. Okay, so runtime is, it's like when we perform the execution. Right now, Oh, okay, got it. it Yes, is yes. already clear in the screen that we have to rectify, only then we can execute it. Okay, got it. Okay, Yep. fine. Now, yes, so Rajesh, I think this particular definition, next pointer will clear you more, that if compilation is successful, then compiler generates a intermediate code, and it is called bytecode, and the extension is .class. It is platform independent. Right, Rajesh? I think यही आप expect कर रहे थे. हाँ जी, हाँ जी. Right. Okay. If the process is done by the JVM, like if the processing done by JVM is not successful, in that case, JVM results either runtime error or exception, what I have already told you. So if we will get the like positive successful thing, then the output will be returned back the way we got here, like first session. So it means that everything is fine. So Shrikant, so here in this program, so this is like a compile time error, no? Yes. Okay. So runtime is basically when we try to execute or perform our code. Yes, correct. Okay. Fine. Next, we can, I think we can move further. Okay, so now it's time for the basic syntax. We have to understand about the basic syntax. So this is the basic syntax. On the right side, you can see we have public class and my first program. Here I have mentioned it. Then public static void main, then system.out.println. This is the basic if you want to learn any Java program. Okay, now understand about the some pointers which are mentioned here, like about class name, about method name, we will discuss it. So class name होना कैसा चाहिए, ये भी एक objective है, because you can write any class name with any syntax. I think like if you want small, you can type like small my first name program, or anything you can write. But what is recommended, because whenever you write the program, you will like push your program into the repository, and someone will review your code, and after that he will merge it into the master branch. So at the review time, he will review each and everything, like the functionality part, he will review the syntax, he will review the like basic nomenclature which we have to follow as per the Java. So that's the reason it is required that we should start like focusing how we should write class, how we should write methods, what things we have to consider while writing the classes or methods. Okay, so first of all, for the class, for all class name, first letter should be in the uppercase. Here you can see my first program. So there are 3 words, my first program, and each word having first
particular character in capitals. Second one is class name should follow camel casing. I think this is the same thing. White space is not required. If you want to try with my space first program, it is not allowed it. Okay, we can't start with any special character. Like if you want to start with public class @ my first program, it will not work. Okay, so these things we have to consider while creating or while like writing the class name. Next one is the method name. So method name, it is also required. All the method names should start with lowercase. If several words are used, then the first word, each like first word should be in the uppercase. Suppose method name is also my first program, so in that case method name will look like M will be small my, first F will be capital, and then program P will be capital. Got it? I will show you the example. Till now this thing is clear? Someone say yes. Yes. I think okay. Something messy, like you said my first program, we cannot proceed with space, is it? My first program, yes. Okay, so it will not allow space. It will suppose you will try sorry, my first space, you will provide the space and then program. So Java will give you some error, or it is actually not recommended. Okay. Okay, and if you will try for the method, you have different like syntax, like you should start with the lowercase first. I will show you each and every example in the next slide, and before that we have to clear with the basic syntax, like this particular thing we have to follow. Okay, Shrikant, one concern here. yes. For the second point is class name should follow camel kissing. So this point is I mean good to have or must to have? I mean actually from PR like from Java point of view, or from whenever we review any PR, we also check these things. So camel casing is like required. It's not like program will not be executed. Okay, you can execute, you can execute the program, but from that point of view, that once you will be a automation engineer and you will write the program and push the program, some reviewer will reviewing, so he will check each and every pointer. Okay, now so that will be a good to have. Yes, good to have, and we have to take care of this thing. Okay, next one is this particular public static void main. This particular line is required. This is the main method which is required for execution of Java program. Okay, क्यों चाहिए यही लाइन? इसका सिंपल सा जवाब है कि JVM एग्जीक्यूशन करता है. अब JVM को एक प्री डिफाइंड सेट, प्रोटोटाइप सेट किया गया है कि जब भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये पर्टिकुलर सिंटेक्स जब भी आएगा तभी एग्जीक्यूशन करेंगे. ये प्री डिफाइंड है JVM के अंदर. ठीक है, इट्स लाइक सपोज कोई फैमिली फंक्शन है आपके यहाँ और आपको किसी को लेने जाना है, अपने पापा के फ्रेंड को, और ना आप उन्हें जानते हो ना वो उन्हें, ना मतलब कोई भी किसी को नहीं जानता, आप भी उन्हें नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानते. तो अब आपको लेने जाना है, कैसे जाओगे? आपके फादर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो ये उनके पास कैरी बैग होगा, इस कलर का चश्मा पहना होगा, या ये हैंड वॉच होगी, इस कलर का पैंट होगा. इन दिस वे कुछ आपको प्री डिफाइंड सेट्स दिए जाएंगे जो आपके फादर आपको बताएंगे. उसके बेसिस पे आप जाओगे, आप चेक करोगे वहां पे ऐसा कोई है या नहीं है. अगर है, आप कॉल बैक अपने फादर करोगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप उसके थ्रू कनेक्ट करोगे और उनको लेके आओगे अपने यहाँ. इन केस आप नहीं जानते हो, इन अ सिमिलर वे जावा में भी यही होता है. JVM को ये प्री डिफाइंड सेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जब भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग इस तरीके से सिंटेक्स आएगा, हम उसे मेन मेथड की तरीके एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद ही हम एग्जीक्यूशन करेंगे. अगर आप ट्राई करोगे जावा क्लास प्रोवाइड करोगे और उसमें ये पर्टिकुलर लाइन मत दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा.
क्योंकि JVM को ये पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस चाहिए। अब इन लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइंस का मतलब क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक का मतलब है इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। सो इसीलिए इसको पब्लिक कहा गया है, सो दैट JVM कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। अगर हम इसे प्रोटेक्टेड कर दें या प्राइवेट कर दें, सो इसका एक्सेस हम प्री डिफाइन कर देंगे कि सिर्फ ये इस क्लास के लिए अलाउड है या सिर्फ ये इस पैकेज के लिए अलाउड है। वो उस चीज को हमें नहीं करना है, अदरवाइज JVM विल नॉट गेट दिस पर्टिकुलर मेन मेथड और एग्जीक्यूशन आपका नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इज रिक्वायर्ड, लाइक मेन मेथड इज रिक्वायर्ड एंड पब्लिक का क्या यूज है अभी क्लियर हो गया, राइट? यस श्रीकांत। ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिक। सो जावा में स्टैटिक का मतलब क्या है कि जब भी हम जावा में काम करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मेथड को। अब ये भी एक मेथड है, मेन मेथड है। अब इसको एक्सेस करना है, अगर इसको एक्सेस करना है तो दो तरीके हैं, या तो हम एक ऑब्जेक्ट इसका बना दें या हम इसे स्टैटिक कर दें। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, और अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर हमें कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। सो वो सारी चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिफॉल्ट, व्हाट इज लाइक कस्टम, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई दीज थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। सो स्टैटिक इसीलिए है कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, सिंपली हम कॉल कर लें। थर्ड वन इज वॉइड। वॉइड का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मेथड से। अगर किसी मेथड से हम कुछ रिटर्न करने वाले होते हैं तो उसका हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते हैं, बट यहाँ मेन मेथड में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कुछ भी रिटर्न होने की, तो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं एज अ वॉइड। देन मेन इज अ नेम ऑफ मेथड, ओके, एंड इट इज लाइक डिफाइंड। अगर आप ट्राई करोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह अपना नाम ट्राई कर लो, श्रीकांत, इट वोंट वर्क, बिकॉज JVM के पास सिर्फ यही पर्टिकुलर चीज प्रोवाइडेड है कि उसके पास सेट है कि मेरे को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही चाहिए, ठीक है, विद स्ट्रिंग एरे। और यहाँ पे जो आप ARGS देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको आप मतलब जितने भी प्रोग्राम्स देखोगे, जितनी भी जगह देखोगे, आपको मोस्टली यही दिखेगा, स्ट्रिंग ARGS। सो ARGS में आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको वही प्रोवाइड करना है। ये एक वेरिएबल है आपका, कि जैसे एरे हम प्रोवाइड करते हैं, एरे के आगे हम अपना एक वेरिएबल देते हैं। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे स्ट्रिंग एक एरे है, सेट ऑफ आर्गुमेंट्स ये सेट ऑफ एरे ये ले रहा है, और यहाँ पे ARGS की जगह आप अपना नाम दे सकते हो, मेरा नाम दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो। सो ये चीज मैंडेटरी नहीं है, बट ये सिंटेक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आपका, और उसके बाद उसका आर्गुमेंट जो भी है आप देना चाहो वो आपको रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। ओके, गॉट इट? ओके, श्रीकांत, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि यस, आपने ये जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैकेज देन क्लास देन मेथड, अच्छा अच्छा, हमारा हाँ यही सीक्वेंस रहता है कि हाँ पैकेज के अंदर क्लास, हाँ क्लास हाँ, के अंदर में ऐसा करेक्ट कोई पॉसिबिलिटी नहीं करेक्ट। होती जहाँ पे हमारा मेथड क्लास से बाहर चला जाएगा या क्लास? नहीं नहीं, ये हनी इस तरीके होता है कि आप ये समझो कि एक पैकेज है, पैकेज एक बड़ी चीज है, ठीक है, एक रूम है, ठीक है, उस पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, ठीक है, तो एक रूम के अंदर 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो पैकेज के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर मेथड, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर सेशन पे ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेथड का क्या मतलब होता है, क्लास का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, then you can understand why this particular hierarchy we are following, okay? और वैसे अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि आपको मेथड बाद में लिखना है, आपका मेथड क्लास के अंदर रहेगा, बट ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो आप। सपोज एक क्लास है, क्लास में 4 मेथड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 ऐसे ही लिखना है, इसी ऑर्डर में लिखना है, आप किसी को भी किसी ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई ऐसा है कि आप पहले इसी को लिखोगे दूसरा इसको लिखोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट हाँ ये है कि आपका क्लास के अंदर ही मेथड्स होंगे, और वो क्यों होंगे वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट लाइन जो आप यहाँ देख रहे हो, system.out.println, ये सबने देखी होगी, हर जगह देखी होगी, हर प्रोग्राम में देखते होगे, राइट? सो और लिखते भी होगे, तो यहाँ पे इसका क्या यूज है, क्यों चाहिए, ये वाली चीज है। ये पर्टिकुलर लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन वी यूज टू प्रिंट our output in the console,
कंसोल पे प्रिंट करने के लिए ये पर्टिकुलर कमांड हम यूज करते हैं। यहाँ पे प्रिंट एलन भी हो सकता है, प्रिंट भी हो सकता है, दोनों चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इट अप टू अस, लाइक हमें कैसी रिक्वायरमेंट है, हम क्या चाहते हैं आउटपुट में, किस वे में कर्सर की पोजीशन क्या चाहते हैं। ठीक है, सो पहले हम इस चीज को पूरा चेक कर लेते हैं कि है क्या। system.out.println, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सिस्टम है, सिस्टम एक क्लास है। मैंने पहले ही कहा था कि क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल्स में होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्लास का सिस्टम एक क्लास है। ओके, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट, ये जो डॉट आउट है इट्स अ इंस्टेंस ऑफ अ प्रिंट स्ट्रीम टाइप। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं चीजों को, हम अपने आउटपुट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं कंसोल में। और जावा में हम डायरेक्टली प्रिंट स्ट्रीम की क्लास जो होती है हमारी, उसके मेथड्स को हम डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। उस रिस्ट्रिक्शन के लिए ये अल्टरनेटिव दिया गया है कि हम क्या करें, एक सिस्टम क्लास है, उसके बाद हम उसमें डॉट आउट जो कि एक इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑफ अ प्रिंट स्ट्रीम टाइप, यानी कि प्रिंट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम अपना प्रिंट एलन मेथड कॉल कर लें। और फिर उस मेथड में हम जो भी यहाँ मेंशन करेंगे डबल कोट्स के अंदर, जैसे यहाँ मैंने लिखा है वेलकम टू QLabs, वो वहां पे एग्जीक्यूशन में आपको आउटपुट में दे देगा। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, system.out.println, system.out.print, दोनों में डिफरेंस क्या है। println अगर करना है तो ये कर्सर की पोजीशन नेक्स्ट लाइन पे कर देता है। सपोज वेलकम टू QLabs टाइप करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे ही अपने आप कर्सर को मूव आउट कर देगा, सो दैट आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, अगर नेक्स्ट कोई आप प्रोग्राम राइट करते हो या आपकी कोई और मेथड है जहां पे आपने प्रिंट एलन कर रखा है, तो नेक्स्ट लाइन पे आपको दे देगा। अगर प्रिंट करते हो तो कर्सर की पोजीशंस वहीं पे रखेगा। अब आप सपोज श्रीकांत लिखते हो, श्रीकांत फर्स्ट यहाँ पे system.out.println में श्रीकांत लिखते हो और उसके बाद पांडे लिखते हो, तो प्रिंट के केस में वो श्रीकांत पांडे कर देगा, प्रिंट एलन के केस में श्रीकांत नेक्स्ट लाइन पांडे कर देगा। डिफरेंस क्लियर हुआ कुछ? अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं। कोई एनी डाउट या कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी? आ रहा है, तो एग्जीक्यूट करने देख लेंगे। हाँ, अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं 2 लाइंस लिख देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट सेशन यहाँ पे कर देते हैं जावा, देख लेते हैं कि आउटपुट में कैसा डिफरेंस है दोनों के। आई होप सभी को सेशन अभी तक समझ में आ रहा होगा और चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट? आप देख रहे हो आउटपुट, द आउटपुट लाइक फर्स्ट सेशन देन जावा। ओके, अब अगर इसी चीज को हम इस तरीके से ट्राई करते हैं, हो गया क्लियर? प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस। तो ये जो system.out.print है, प्रिंट एलन है, इसका मेन यूज कहाँ करते हैं, हमें डिबगिंग में हेल्प करता है। हम यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या है। इन एक्चुअल जो भी हमारा आउटपुट आता है उसको हम कहीं और यूज करते हैं, और जो भी फ्रेमवर्क लेवल पे जो भी डिजाइनिंग होती है, बट समटाइम्स वी फेस सम इशू वेयर वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट। Okay, so in that case we write system.out.println and we will like provide the variable name so that it will return back the output in the console, and we will get to know that exactly the expected outcome is coming or not. Fine. अभी कुछ क्लियर हुआ है बेसिक सिंटेक्स? Yes, Srikanth. हाँ जी, Yes, yes. ओके, अभी लिख सकते हो सब लोग। अगर जिसके पास आईडी कॉन्फ़िगर्ड है वो नहीं है तो कॉन्फ़िगर करा देंगे, उसके बाद कर लेना, ठीक है? बट टिल नाउ इट इज क्लियर, राइट? राइट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने
एक बेसिक सिंटेक्स जावा का पढ़ लिया कि जावा का बेसिक सिंटेक्स क्या है, उसमें मेन मेथड के बारे में पढ़ लिया, उसमें हमने अपने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब वेरिएबल की बारी आती है, बिकॉज हम कुछ ना कुछ चीजें अपने प्रोग्राम में सेव करेंगे, उनको कहीं यूटिलाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फ्रेमवर्क डिजाइन होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल्स, वेरिएबल इज अ लोकेशन in memory to hold the data, to indicate the storage area. Each variable should have unique name or identifier. सिंपल सा मतलब है कि हमें अगर कोई भी चीज अपने पास स्टोर करनी है प्रोग्राम में, हमें उसको वेरिएबल के फॉर्म में कहीं ना कहीं रखना होगा। अब वेरिएबल के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, लिमिट जो है, लिमिट एक वेरिएबल है। यहाँ इंट लिमिट मैंने पहले ही एक प्रोग्राम में आपको दिखाया था, जहां मैंने इंट a इक्वल्स टू श्रीकांत लिखा था, उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप मिसमैच हो रहा था। यहाँ पे हमने 100 दिया है, 100 इज अ न्यूमेरिकल थिंग, इंटीजर। ओके, सो लिमिट जो है, लिमिट वेरिएबल स्टोर करेगा 100 वैल्यू को, जो मैंने यहाँ वैल्यू असाइन करी हुई है। ओके, सो लिमिट इज अ वेरिएबल ऑफ इन डेटा टाइप एंड वी हैव असाइंड वैल्यू 100 टू इट। असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। हम वेरिएबल डिफाइन करते समय ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इंट लिमिट लिखते हैं, हम उसमें वैल्यू ना प्रोवाइड करें, हम बोले हम आगे जाके प्रोग्राम में डिफाइन कर देंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। इट्स लाइक वी कैन इनिशियलाइज, वी कैन नॉट इनिशियलाइज, इट टोटली ऑन अस, बट एज पर द रिक्वायरमेंट वी यूजुअली declare our this particular variable, and for this variable thing we need data type, क्योंकि किसी वेरिएबल को, किसी वेरिएबल में कुछ चीज स्टोर करने के लिए उसका डेटा टाइप पता होना जरूरी है, राइट? अगर हमें बर्फ जमानी है तो हमें ट्रे का पता होना चाहिए, साइज कैसा है, किस साइज में है, उसी साइज में हमें बर्फ मिलेगी, राइट? सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे आपका जो भी यहाँ डेटा टाइप आप देख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट है। अभी क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जावा में, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट अभी फिलहाल हम वेरिएबल पे फोकस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज इन द प्रोग्राम। यस, करेक्ट, हम चेंज कर सकते हैं। सपोज इंट लिमिट 100 है, मैं चाहता हूं उसकी लिमिट चेंज करना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। हाउएवर वी कैन नॉट चेंज द डेटा टाइप। लाइक इंट लिमिट 100 हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि लिमिट जो है वो इंटीजर टाइप की है। अब जब हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि उसकी लिमिट की जो डेटा टाइप उसको चेंज कर दें, हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। 100 से 50 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड है उस तरीके से। सो एग्जांपल भी है, एग्जांपल में इंट लिमिट 200 है, लिमिट हमने डिफाइन कर दी 50, 200 से 50 कर दी, और उसके बाद system.out.println किया। अब ये कौन सी आउटपुट लेके आएगा, ये डिफाइन होगा जो भी लेटेस्ट लिमिट में पड़ा होगा, लेटेस्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। तो अभी यहाँ पे लेटेस्ट स्टोर होगा 50। ओके, गॉट इट? वन क्वेश्चन श्रीकांत, अगर हमने दिया int इक्वल्स टू 100 एंड int लिमिट इक्वल्स टू 100, तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे? ओके, सो int इक्वल्स टू 100 आपने दे दिया, पहली चीज, तो इस पे डिस्कस करते हैं। इंट एक डेटा टाइप है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं कुछ स्टोर कराने के लिए वो चाहिए, वेरिएबल चाहिए कि हमें कहाँ स्टोर कराना है, किस टाइप में। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, तो ये घर में स्टोर, एक तरीके स्टोरेज, हम अपनी अगर हम देखें कि हम कहाँ रहते हैं, हम घर में रहते हैं, तो जो घर है ये एक वेरिएबल है हमारा, हाउस इज अ वेरिएबल। ओके, सो अगर हमें किसी वैल्यू को स्टोर करना है किसी डिफरेंट स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के रिस्पेक्टिव, क्योंकि जो आप देख रहे हो इंटीजर, यहाँ INT, और आप देखोगे अभी स्ट्रिंग देखोगे, आप फ्लोट देखोगे, ये डिफरेंट प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स हैं कि इस तरीके का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए, क्योंकि आगे हमें अगर एक्सेस करना है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो हमें उसका वेरिएबल का नाम होना चाहिए हमारे पास, राइट? ओके, जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट है लिमिट इज इक्वल्स टू 50। आप सोच रहे होगे इसमें तो इंट नहीं लगाया और ऊपर बोल रखा है कि इंट लगाना है, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे क्या है, इंट लिमिट 200। फर्स्ट टाइम मैंने डिक्लेयर कर दिया कि लिमिट जो है इंटीजर टाइप की है, उसमें 200
हम स्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर टाइप का है, ये ऑलरेडी डिफाइन है क्योंकि मैंने लिमिट, मेरा वेरिएबल नेम सेम है। अभी अगर मैं लिमिट 1 कर दूं तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तब वो कहेगा कि भाई क्या डेटा टाइप है ये तो बताओ। जावा को सब चीजें बतानी होती हैं कि अगर लिमिट 1 है उसमें मैं 50 स्टोर कर रहा हूं तो ये किस टाइप में स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर में करना चाहते हो, स्ट्रिंग में करना चाहते हो, भाई बता तो दो। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? नहीं 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 समझा। फॉर एग्जांपल आपने बोला अगर इंट लिमिट को आप 1 कर दिया एंड देन बिलो इट्स डिफाइंड एज लिमिट इक्वल्स टू 50, हाँ। तो फिर उस कंडीशन में भी तो वी हैव प्रोवाइडेड इन फर्स्ट लाइन ना कि दिस इज द इंटीजर टाइप, तो Right. व्हाई अभी अभी इसको 1 के साथ करके क्यों इशू है? इसको करके देख लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर Yep. होगा। बोला इंट लिमिट इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब आपने पहले बोला कि मैं चाहती हूँ ये करना, ठीक है, कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। रिमूव एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको आपके जो कंपाइलर है या आपका जो आईडी है वही आपको यहाँ पे एरर देने लगा, ठीक है। आपने सेम यही चीज करी है, इंट इज इक्वल टू 200। अगर आप यहाँ देखोगे एरर में आपको दिखा रहा होगा कि स्टेटमेंट जो भी है ये कंप्लीट नहीं है आपका, नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। अभी अगर आप ये वाली चीज ट्राई करते हो जो आपने कहा था लिमिट को, मैं करती हूँ लिमिट, ठीक है। अब लिमिट के लिए आ गई एरर, अब लिमिट के लिए देखते हैं क्या है। क्रिएट लोकल वेरिएबल, वेरिएबल हमें यहाँ पे करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो क्या करेगा, इंट। उसने किस बेसिस पे इंट डिफाइन किया, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो लॉन्ग, फ्लोट, डबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप आ रहे हैं। किस बेसिस पे उसने प्री डिफाइन कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटीजर है, सेकंड जो हमने यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करी हुई है, जावा उसे यहाँ पे एज्यूम कर रहा है कि वो एक इंटीजर टाइप की है। अभी अगर मैं इसी को 200 को यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में दे दूं फिर भी एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड टाइप है वो इंटीजर है और जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटीजर कर रहे हैं, सॉरी स्ट्रिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं, राइट। सो आपको अभी थोड़ा सा क्लियर होगा कि डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है और वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ये चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी पूरी तरीके से तब आप आगे जाके चीजें समझ पाओगे कि अगर मुझे स्ट्रिंग डेटा, अगर स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मुझे कौन सा डेटा टाइप प्रोवाइड करना है, मुझे अगर इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी तो मुझे कौन सा डेटा टाइप प्रोवाइड करना है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये डेटा टाइप है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपकी वैल्यू है और ये आपका कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। अब वापस से आते हैं Right. दूसरी चीज पे जो आपने पूछी थी एक और, कि यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं गया, आपने कहा मैं फिर से क्यों नहीं कर सकती, ये लो आप, मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। फिर से हमने, क्योंकि जब ऊपर इंटीजर बोला तो नीचे क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, लिमिट वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप। उसने बोला कि लिमिट ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है, यानी सेम वेरिएबल अभी पड़ा हुआ है हमारे पास और सेम वेरिएबल किस टाइप का है ये भी हमें पता है। अभी अगर इसी चीज को मैं लिमिट 1 कर दूं चल जाएगा, राइट। सो जो चीज हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, जिसकी स्कोप हमारे पास अभी करंटली पड़ी हुई है, उस चीज को हम बार बार उसका हम ये नहीं कि हम डेटा टाइप चेंज करें या हम बार बार डेटा टाइप डिफाइन करें। अब इस कंडीशन में अगर मुझे लिमिट चेंज करनी है तो करना क्या होगा, मुझे अपना ये टाइप हटाना होगा। क्यों? अब आप देखो, जैसे मैं यहाँ कर्सर पे फोकस कर रहा हूँ आप देख रहे होगे दोनों का वो सेम आ रहा होगा, राइट। सो अब अगर आप इसमें आउटपुट देखोगे तो आउटपुट आपको 50 मिलेगा। ट्राई कर लेते हैं। ओके, आ गया 50। राइट। क्लियर हुआ कि हमें कैसे वेरिएबल देना है, उसके बाद कैसे वेरिएबल को अपडेट करना है और क्या चीजें ध्यान रखनी है अपडेट करते टाइम। If I'm providing int limit is 1, in that case what will happen? यहाँ पे Yes. चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, वो अपडेट कर देगा वैल्यू।
राइट। अब आप अगर ये बोलते हो कि मैं इसे 1 कर देती हूँ और इसे 50 कर देते हैं, तो वो जो भी आपका लेटेस्ट स्टोर होगा लिमिट के अंदर, वो डेटा यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ठीक है। Okay. ओके फाइन। और किसी को कोई डाउट Yeah. अभी? आई थिंक ये वेरिएबल पार्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा इन पर्टिकुलर एग्जांपल से, राइट? हाँ जी। ओके 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 ओके। So Shrikant, I mean, data type is like measuring quantity of variable. डेटा I mean, टाइप, मतलब वेरिएबल को हम किस क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं या क्या उसकी क्या कैरेक्टर होगी, हाँ उसको काइंड ऑफ मतलब हम डेटा टाइप कह सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। आप ये समझो कि हम यहाँ वेरिएबल एक आइडेंटिफायर नेम दे रहे हैं, ठीक है। श्रीकांत ये मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरी यूनिकनेस होगी, ठीक है। अब अगर मेरी कोई आईडी होगी, ऑफिशियल आईडी होगी, ईमेल आईडी होगी, ठीक है, तो उसके लिए बोलेंगे श्रीकांत की ईमेल आईडी ये है, ठीक है। तो श्रीकांत यहाँ पे एज अ वेरिएबल हो गया, ठीक है। हाँ। अब अगर एक क्लास में 2 श्रीकांत आ जाएं, अभी स्कूल की बात सोचो, स्कूल में 2 श्रीकांत हैं और दोनों का अगर नाम लेना है तो क्या होगा, या तो श्रीकांत 1 कर देते हैं उसे, या हम कुछ और नाम से उसको प्री डिफाइन कर देते हैं। अदरवाइज हम बोल तो सकते हैं कि श्रीकांत तो है। अब अगर उस टाइम पे क्लास में टीचर पूछेगा कितने श्रीकांत हैं, तो होगा 2 श्रीकांत हैं। कंफ्यूजन भाई किससे मिलना है, तो बताएंगे भाई इस वाले रोल नंबर वाले श्रीकांत से मिलना है, राइट। तो सिमिलर वे में यहाँ वेरिएबल आपको एक तरीके आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर दे रहा है आपको। इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेम टाइप का आपका इंटीजर टाइप का अभी लिमिट पड़ी हुई है और आप दोबारा से इंटीजर टाइप की लिमिट फिर से आप डिफाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है। अभी आई थिंक इस एग्जांपल से क्लियर होगा ज्यादा, जो मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया। सो नेक्स्ट इज कितने तरीके के हमारे वेरिएबल्स हैं देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, देखते हैं इनके बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो शायद अभी हमने नहीं पढ़े हैं, जैसे मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बट एग्जांपल है मेरे पास इसका कि कैसे हम समझ सकते हैं। लोकल वेरिएबल होता क्या है? लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन मेथड्स, इन कंस्ट्रक्टर और सेट ऑफ ब्लॉक्स। सपोज एक ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, जिसकी स्कोप पर्टिकुलर मेथड या उस कंस्ट्रक्टर, आप ये समझ लो कि आपका एक कैबिन है ऑफिस में, ठीक है। आपकी जो विजिबिलिटी है या आपका जो वर्किंग एरिया, वो आपके उस पर्टिकुलर केबिन तक ही है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक तरीके लोकल वेरिएबल हो गया वहां पे। क्या वहां पे आपकी स्कोप वहीं तक है, उसके बाद आपकी नहीं है, ठीक है। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी। सो ऑर्गेनाइजेशन ए में अगर वो काम कर रहा है, तो उसके लिए वो वहां पे लोकल वेरिएबल की तरीके है, वो विद इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी से भी मिल सकता है। उसी तरीके लोकल वेरिएबल होते हैं। ये मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर होते हैं, ठीक है। इनकी विजिबिलिटी जो होती है सिर्फ वहीं तक होती है, उसके आगे नहीं होती है। अगर मुझे डेटा चाहिए या उसको यूज करना है, तो विद इन दैट पर्टिकुलर मेथड ही हम यूज करेंगे। अभी मैं एग्जांपल भी एक शो करूंगा जिसमें आपको क्लियर होगा कि लोकल और इंस्टेंस में कैसे डिफरेंस है। इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं क्लास में, जो कि हमारे आउटसाइड दी मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक होता है, जो कि एक तरीके हम कहीं भी आगे यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड। अभी हम आगे क्लास का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वहां पे हमें पता चलेगा ये न्यू कीवर्ड कैसे रिक्वायर्ड होता है और कब हम उसे यूज करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है कि हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है, और जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है वो स्टैक मेमोरी में होता है। मेमोरी एलोकेशन का जो पार्ट है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली अगर हमें फास्ट रिट्रीवल चाहिए, कि इट्स लाइक जल्दी जल्दी हमें चाहिए उसका आउटपुट, या हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो हम उसको स्टैक में रख देते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है। हीप मेमोरी हमारी एक अलग टाइप की मेमोरी होती है, जहां पे हम एक्चुअली अपने इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड्स जो भी हमें उनको रखते हैं। अभी एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है और कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ ये एग्जांपल है, करेक्ट। तो ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, मैंने यहाँ वेरिएबल्स दिया हुआ है, आप ये देख रहे होगे, ये पर्टिकुलर क्लास है वेरिएबल्स,
जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल जो प्रोवाइड किया है उसका नाम दिया है इंस्टेंस, स्ट्रिंग इंस्टेंस। उसका जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी है, दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस मतलब कि जो क्लास लेवल पे मैंने डिफाइन किया है। नेक्स्ट है माई मेथड, एक मैंने मेथड बनाया है जिसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल दिया है, स्ट्रिंग लोकल, दिस इज अ लोकल वेरिएबल। इसकी स्कोप सिर्फ माई मेथड तक रहेगी, इसके बाहर आप इसे नहीं यूज कर सकते। ओके, अब मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कैसे बना है, यहाँ पे वेरिएबल्स, ये रेफरेंस है वीबी इज इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल। वेरिएबल हमारी क्लास थी। अगर हमें किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाना है किसी क्लास का, तो ये हमारा एक सिंटेक्स होता है जहां पे हम क्लास का नाम देते हैं, वेरिएबल देते हैं, फिर न्यू कीवर्ड अपना प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम फिर से क्लास का नाम देते हैं। तो ये जो वीबी आप देख रहे हो, ये एक रेफरेंस है। इस रेफरेंस के थ्रू हम अपने क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं, हम अपने क्लास के वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे vb डॉट माई मैथड मैंने लिखा, नेक्स्ट सिस्टम डॉट प्रिंटलन मैंने किया, vb डॉट इंस्टेंस किया। मैंने जैसा कहा था आपसे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हम अपने मेथड्स भी कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल जो मैंने दे रखा है उसे कॉल किया, vb डॉट इंस्टेंस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और नेक्स्ट मैंने क्या प्रोवाइड करा, यहाँ पे अपना मेथड जो था मेरा, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे मेरा एक स्टैटिक बी वेरिएबल दिया हुआ है मैंने ऊपर, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली उसे कॉल कर लेते हैं। जो मैंने अभी बताया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, सेम चीज हम यहाँ करके दिखा रहे हैं कि हमने एक स्टैटिक वेरिएबल कॉल किया जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। एक हमने इंस्टेंस वेरिएबल कॉल किया जिसमें हमने vb डॉट इंस्टेंस किया, और हमने एक vb डॉट माई मेथड डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। आउटपुट हमारा क्या आया, दिस इज अ लोकल वेरिएबल। जो मेरा पहला एग्जीक्यूशन हुआ vb डॉट माई मेथड का, वहां पे क्या है, दिस इज अ लोकल वेरिएबल, तो उसका आउटपुट मेरे पास यहाँ पे नीचे आ गया। सेकंड एग्जीक्यूशन इंस्टेंस का हुआ, दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। और थर्ड जो आउटपुट आया वो मेरा स्टैटिक वेरिएबल का आ गया। अभी कुछ समझ आया? आई थिंक 20% समझ आया होगा, बाकी सब बाउंस मारा होगा, राइट? यस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यही सुनना है। चलते हैं क्लास में डायरेक्ट, ठीक है। ये है मेरी क्लास, कोड से समझते हैं। कहाँ है कोड? कर दिया क्या? वेरिएबल्स, राइट। ये मेरी क्लास, ये वही क्लास है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है, लेकिन अब फिर से एक बार देखते हैं। ये पर्टिकुलर चीज जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, स्ट्रिंग इंस्टेंस, आपको अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या लिखा है, तो अभी जो मैंने बताया था ना वेरिएबल वाली बात, ये है वेरिएबल ही आपका। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ये आपका एक वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आपको समझ में आ जाए कि इंस्टेंस क्या होता है और आपका लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है। यहाँ पे आप नाम XYZ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको वही नाम देना है जो मैंने यहाँ दिया, आप अपने समझ के लिए कुछ भी दे सकते हो, बट आपको इजी पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंस्टेंस दिया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने दिया है एक स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल, जो भी हमारी स्टैटिक क्लास होती है उसके मेथड को या उसके वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे मैंने ये जो डिफाइन किया हुआ है, आप इतना तो पार्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये चीज, ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्टैटिक वेरिएबल ये एक वेरिएबल है, और ये एक वैल्यू है। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट मैंने लिख रखा है पब्लिक स्टैटिक, तो पब्लिक मैंने बस जो मैंने पहले बताया था कि भाई मुझे एक्सेस सबको दे देनी है, अभी मैं नहीं चाहता कि कुछ रिस्ट्रिक्शन, तो मैंने अभी पब्लिक दे दिया। पब्लिक को अभी अपनी लोकल पब्लिक वाला सिस्टम समझो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है सबके लिए अवेलेबल, वही चीज है यहाँ पे कि पब्लिक सबके लिए अवेलेबल। नेक्स्ट है स्टैटिक मैंने दिया है, तो स्टैटिक का यहाँ पे मतलब यही है कि मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी इंस्टेंस को या ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहता हूँ विदाउट ऑब्जेक्ट,
कि ऑब्जेक्ट के बिना मैं मेथड कॉल कर लूं या अपना वेरिएबल कॉल कर लूं, तो उस केस में मैं उसे स्टैटिक दे दूंगा। अभी इसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी चीजें डिटेल में। नेक्स्ट है, ये मेरा मेथड है पर्टिकुलर, ठीक है, माई मेथड। इस मेथड के अंदर अभी तक हम लोग जैसे मेथड में लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, लोकल एक वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है, मैंने इसके अंदर कर दिया। तो अगर आप देखोगे इंस्टेंस है या वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल है सब वेरिएबल ही, बट इनकी स्कोप डिफाइन है। इस लोकल की डेफिनेशन सिर्फ इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर तक ही है। ओके, क्वेश्चन है मेरा इसमें। हाँ हाँ, जैसे ये आपने बताया पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ये वाला वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, हाँ हाँ, तो अगर मैं पब्लिक नहीं लिखता हूँ तो ये यहाँ पे चल जाए, काम करेगा हाँ, यहाँ पे बिल्कुल 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 v चलेगा, डॉट इंस्टेंस में? बिल्कुल 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 चलेगा। ये क्या है, हम गुड टू हैव वाली कंडीशन है, अगर हम नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट ले लेता है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि हम क्या क्या दे सकते हैं और कब क्या देंगे, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैं हर जगह पब्लिक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप रिलेट कर सको पब्लिक से, क्योंकि हम डेली लाइफ में पब्लिक जानते हैं कि पब्लिक क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज करे, तो वैसे ही ये पब्लिक है, कोई भी यूज करे। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया ये वेरिएबल होते हैं स्टैटिक वाले, उसमें ऑब्जेक्ट की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ हाँ तो वैसे ही जैसे ये मेथड लिखा हुआ है पब्लिक हाँ वाइड मेथड, हाँ, इसको भी कर सकते हैं, वाइड माई, स्टैटिक कर तो सकते हैं। फिर इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कॉल करेक्ट हो सकता है करेक्ट क्या ये? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही होता है, यही चीज अच्छा, होती है। हाँ, तो ये हमारी यूज केस के ऊपर होता है कि हमारा यूज केस क्या है, हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें ये लगता है कि हाँ, जैसे मतलब पूछ रहा हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड माई मेथड आपने लिख दिया, ठीक है, और नीचे मैं से डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, सिंपल हाँ सिंपल, और बिल्कुल। उसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? लो अभी करके देख लेते हैं, हो गया, अच्छा, कोई एक मिनट, दिक्कत नहीं है। समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा ऑब्जेक्टिव स्टैटिक को समझाने का यही है कि स्टैटिक का मतलब ये है कि मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए अगर मुझे वेरिएबल एक्सेस करना है तो वेरिएबल भी एक्सेस कर सकता हूँ, मेथड एक्सेस करना है तो मैं मेथड भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक स्टैटिक वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा अब तक, राइट? सभी को क्लियर हाँ हुआ? जी, यस यस, नाउ थोड़ा क्लियर है अभी। हाँ, अभी अभी और क्लियर होगा जब आप खुद से हैंड्स ऑन करोगे, तब ज्यादा क्लियर होगा। या ओके, इसके बाद हम कहाँ थे, मेथड पे, कि हम मेथड पे बात कर रहे थे कि लोकल वेरिएबल है, इसकी स्कोप सिर्फ इस मेथड तक है। ये मेरा मेन मेथड है, मेन मेथड में मैंने ये जो सिंटेक्स यूज किया है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हम करते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में भी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स मेरी क्लास थी, क्लास का नाम दिया, रेफरेंस दिया। ये रेफरेंस ऐसा नहीं है वीबी ही देना है, आप कुछ भी दो, ठीक है चलेगा, लेकिन साथ में उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा क्योंकि आप रेफरेंस के थ्रू कॉल करते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर रेफरेंस नहीं दिया तो? रेफरेंस नहीं दिया तो फिर वो समझेगा कैसे? अभी अगर मैं इसका रेफरेंस ना दूं, ठीक है, तो वो आप ये समझो ना कि एक कुआं है, कुएं से पानी निकालना है, आप बोलो मैं बाल्टी नहीं दूंगी, बिना बाल्टी के पानी निकालना है, कैसे निकालूंगी? समझे? तो आपका डेटा सारा एक जगह स्टोर हो गया है, मेमोरी में है आपके पास। ठीक है, चाहे वो आपका स्टैक हो, चाहे आपका हीप मेमोरी हो, किसी भी जगह कहीं ना कहीं हम यहाँ अगर डिक्लेयर करते जा रहे हैं, हमारा सेव होता जा रहा है। अब हमें अगर उसे निकालना है तो कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए, चाहे बाल्टी आप दो, चाहे आप और बड़ी बाल्टी दे दो, डिपेंड्स ऑन यू। तो लेकिन पानी अगर निकालना है तो बाल्टी देनी पड़ेगी। सिमिलर वे में यहाँ पे हमें अपना रेफरेंस प्रोवाइड करना होगा। अब ये रेफरेंस क्या करेगा, इस रेफरेंस के थ्रू हम अपने मेथड को, अपने वेरिएबल्स को हम कॉल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ कॉल किया वीबी डॉट मेथड, आप देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। वीबी डॉट करा तो देखो आपको दिखाने लगा कि आपको क्या कॉल चाहिए। आप इंस्टेंस कॉल करना चाहते हो, यानी कि आप एक वेरिएबल को कॉल करना चाहते हो, या आप एक मेथड को कॉल करना चाहते हो? मैंने कहा भाई मुझे मेथड से मतलब है, उसने मेथड कॉल कर दिया मेरे लिए।
ठीक है। तब ये स्ट्रिंग वाला जो स्टैटिक वाला है वो मतलब शो भी नहीं हो रहा है वीबी डॉट करने पर, है ना? हाँ, क्योंकि क्योंकि वो डायरेक्ट है, वो किसी क्लास का पार्ट नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब वो आपका ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पे आपको इवन अगर आप मतलब दे भी दोगे तो भी ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि नहीं भाई नहीं देना है। आप अगर यहाँ पे अभी हमने यहाँ किया था ना शायद स्टैटिक, देखो कहीं एरर आया। चलिए तो ये रन हो जाएगा ये वाला। हाँ ये रन हो जाएगा, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। जावा में ये बोलते हैं कि जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, आप खुद सोचो कि मुझे जब इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं तो मैं ऑब्जेक्ट बना के अपनी एग्जीक्यूशन का टाइम क्यों वेस्ट करूं जब मैं बिना उसके काम कर सकता हूं, राइट? तो इसलिए अब इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, अभी ये चीज पहले ये बताओ सबको क्लियर हुई, लाइक व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, जो हमने इस इंस्टेंस वेरिएबल की स्कोप डिस्कस करी, स्टैटिक वेरिएबल जो हमने डिस्कस किया, और लोकल वेरिएबल जो डिस्कस किया, ये क्लियर हुआ? Shrikant, one thing, for output, why we have provided that reference with instances? For example, in second last line, system out println and vb.instance. If they are providing that instance only, so it will show an error, or we ट्राई कर can लेते हैं, execute with that. ट्राई कर लेते हैं क्या होगा, क्या एरर दे रहा है देखते हैं। कुछ तो एरर दे रहा है, कुछ दिया है, पढ़ते हैं। नॉन स्टैटिक, उसने क्या बोला, नॉन स्टैटिक फील्ड इंस्टेंस इज अ नॉन स्टैटिक, फॉर नॉन स्टैटिक वी नीड ऑब्जेक्ट। अभी जो हमने बात करी थी कि सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स ही हैं जिनको हम बिना ऑब्जेक्ट के पास कर सकते हैं, मतलब उनको हम कॉल कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसे यहाँ पे स्टैटिक कर दूं तो ये एरर बंद हो जाएगी आपकी। यहाँ पे सेकंड, यहाँ कुछ और भी रिक्वायर्ड होगा चेंज, क्योंकि मैंने और भी कर रखा है यहाँ। ठीक है, इन शॉर्ट आप समझ गए ना कि यहाँ पे आपको अगर अपने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना है तो कैसे करना है, और अगर आप विद रेफरेंस, आपको अगर नॉन स्टैटिक है तो विद रेफरेंस, स्टैटिक है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो जैसे यहाँ पे कॉल किया है। ओके, ठीक है, यस। सभी को सारे जितनी भी हमने डिस्कशंस किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अराउंड क्लियर हुआ? एग्जीक्यूट करके देख ले। यस श्रीकांत। तो डेफिनेशन आपको सारी इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सी बेटर है। ठीक है, बट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या स्कोप है, वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। इवन प्रेजेंटेशन में भी आपको मिलेगी बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस, बट जो भी कन्वीनियंट आपको लगे उसके अकॉर्डिंग। दीज आर द लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो, they might ask you what is instance variable, what is static, and in case of static variable or method, can we like create objects? So these kinds of questions you can like expect in the Java interview. These are the very basic. Okay, next topic पे चले। Yes. Okay, so next topic स्लाइड पे स्टैटिक क्लास वेरिएबल जो भी है, यहाँ हम देख लेते हैं क्या चीज है। जो हमने बात करी वही होगी यहाँ पे भी। क्लास वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल्स, आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इन द क्लास बट आउटसाइड द मेथड कंस्ट्रक्टर। सेम चीज जो हमने अभी करके देखी है कि मेथड है उससे हमने इसको बाहर अपना प्रोवाइड कर रखा है, मतलब इसकी स्कोप क्लास लेवल स्कोप है, और इसमें स्टैटिक कीवर्ड हमने यूज किया है। ठीक है, ये स्टैटिक मेमोरी में सेव हो रहा है, जो मैंने कहा था कि मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है हमारा। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए अगर बात करें तो कैसे, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस बाय कॉलिंग विद द क्लास नेम और डायरेक्ट हम उसका वेरिएबल नेम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी क्लास स्टैटिक है, अभी हमने यहाँ पे अपना जो वेरिएबल था उसे स्टैटिक किया था, अगर हमारी इन फ्यूचर हम ऐसा करते हैं कि अपनी क्लास को ही स्टैटिक बना देते हैं, तो उस केस में हम उस क्लास के नेम को और डायरेक्टली उसके जो भी हमारा वेरिएबल है या मेथड है उसको हम डॉट लिख के कर सकते हैं, सो दैट इट विल एग्जीक्यूट। ओके, सो इन शॉर्ट स्टैटिक अगर आपका कहीं भी आता है,
अगर आपका वेरिएबल लेवल पे आता है, अगर आपको बोलते हैं स्टैटिक क्लास है, मेथड है, कैसे हम काम करेंगे, इन दैट केस यू कैन लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड से दैट in that case we need not to create objects of that particular class, we can directly execute it. Fine. Yes. Okay. अब बात करते हैं डेटा टाइप की. आई थिंक बहुत कंफ्यूजन हुआ था अभी तक कि वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल में पहले ये इंट क्या है, फिर वेरिएबल क्या है, हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते. तो यहाँ पे उसका जवाब है थोड़ा सा. डेटा टाइप हमारे यहाँ पे दो तरीके के हैं जावा पे. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव, it's like we have different categories: byte, short, int, long. For storing whole numbers, I can say that if we want to store 20, 100 in this kind of way, we want to store, we can store inside these particular data types. Okay. एंड अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चीजें सेव करनी है, फ्लोट या डबल आप यूज कर सकते हो. इनका कुछ वो सेट होता है कि एक लिमिट होती है कि आफ्टर सर्टेन लिमिट फ्लोट टर्न्स इनटू डबल. वो चीज एक बार देखना होगा. बट इन शॉर्ट फ्रैक्शन डिजिट्स, अगर हम फ्रैक्शन नंबर्स सेव करना चाहते हैं, सपोज 15.5, तो वो हम इंटीजर में नहीं सेव कर सकते. ठीक है, उसके लिए हमें फ्लोट या डबल को ही चूज करना होगा. तो ये एक बेसिक माइंडसेट रहेगा हमारा कि हमें कब क्या यूज करना है. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इंटीजर में क्या करते हैं, फ्लोट में क्या कर सकते हैं. अगर एक कैरेक्टर है, सपोज मैं सिर्फ ये सेव करना चाहता हूँ, एस एन डी, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो वो हमारे क्या है, कैरेक्टर है, नॉट अ स्ट्रिंग. तो हम उसे, हमारे पास एक डेटा टाइप है कैर टाइप का, वहां पे हम सेव कर सकते हैं. ठीक है. अगर मेरी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है तो हम उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. स्ट्रिंग जैसा अभी लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू श्रीकांत पांडे, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप में हमारा सेव हो जाएगी. बुलियन, अगर मैं चाहता हूँ ट्रू फॉल्स सेव करना, अगर ट्रू फॉल्स की वैल्यू सेव करानी है, तो उसके लिए हमारे पास बुलियन डेटा टाइप है. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रिंग, जो कि हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, क्लासेस होती हैं, एरे होते हैं, जो कि हम आगे सेशंस में देखेंगे. क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि डेटा टाइप, क्लासेस और एरे एज अ डेटा टाइप, ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे. सो दैट राइट नाउ एटलीस्ट हम इस लेवल पे क्लियर हो जाए कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो कि मेनली हम डेली बेसिस पे यूज करेंगे हर जगह, स्ट्रिंग डेटा टाइप, कैरेक्टर, बुलियन, इंट, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हमें, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम क्या क्या दे सकते हैं. बट हाँ, ये है कि जैसे बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, तो इसमें कुछ वो है आपका डिफाइंड है कि कितने तक वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बाइट के लिए कितना, शॉर्ट के लिए, ये एक बार मतलब गो थ्रू करना होगा. बट इन जनरल हम अगर बात करते हैं कि इंट में क्या करते हैं, तो इंट में हम इंटीजर वैल्यूज रखते हैं. फ्लोट For short and long as well, we have there are something limitation. यस यस, कुछ लिमिट्स होती हैं उसकी, वो एक बार हमें देखनी होंगी. बट ये सारी कैटेगरीज जो हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब इंटीजर की ही एक तरह की कैटेगरीज हैं. जैसे हमारा फ्रैक्शन है, वो हमारा फ्लोट या डबल में है. ठीक है. अगर हम एक स्ट्रिंग है, उसको हम कैरेक्टर फॉर्म में डालते हैं, तो हमारा एक कैर टाइप का डेटा टाइप बन गया अलग. ठीक है. अगर हम प्रॉपर स्ट्रिंग डाल देते हैं, तो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बन गया. तो एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही हमें अपने डेटा टाइप को चेंज करना होता है. ओके. नेक्स्ट है जो एक्सेस मॉडिफायर, बहुत डिस्कस किया हमने कि ये क्या है, हम पब्लिक ना दें तो क्या होगा, राइट. तो यहाँ पे डिस्कशन है. इन जावा, एक्सेस मॉडिफायर आर यूज्ड टू सेट द एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास, इंटरफेस, वेरिएबल, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर्स. इट्स लाइक हम कहीं पे भी अपना अगर एक क्लास बनाते हैं, अपने मेथड बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसकी एक विजिबिलिटी डिफाइन करनी होगी हमें कि वो कहाँ तक विजिबल हो हमारे लिए. अगर कल को हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, तो इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह यूज करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हमें क्या एक्सेस मॉडिफायर देने चाहिए. तो वो सारी चीजें हमें तब पता होंगी जब हमें ये पता होगा कितने टाइप्स के डेटा
यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है इन जावा, राइट? सो राइट नाउ वी कैन से 4 डिफरेंट टाइप्स आर अवेलेबल. डिफॉल्ट declarations are visible to all classes within the package. राजेश, जो आपने कहा था कि अगर मैं पब्लिक हटा दूं तो क्या होगा, याद है अभी लास्ट एग्जांपल में? तो यही होगा. ये जो डिफॉल्ट आपका हुआ एक तरीके वो उसने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, वो विद इन द पैकेज जो भी हमारा एंटायर पैकेज है वो हर जगह विजिबल रहेगा. ठीक है, इसीलिए एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ठीक है, अब इसके बाद हम अगर कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लाइक पब्लिक हमने हर जगह यूज किया है, मोस्टली यूज किया है. पब्लिक डिक्लेरेशंस आर विजिबल एनीवेयर, सॉरी एवरीवेयर. इसके लिए आप ये समझ सकते हो पब्लिक और डिफॉल्ट के बीच में अगर स्कोप की बात करें तो डिफॉल्ट इट्स लाइक पैकेज लेवल, और ये आपका जो भी आपका वो है, आप क्या बोलोगे, एक क्लास में आप कल को इनहेरिटेंस करना चाहते हो तो डिफरेंट क्लास में भी आप कॉल बैक कर सको, तो एक क्लास की विजिबिलिटी दूसरी क्लास में, क्लास लेवल विजिबिलिटी यू कैन से. ओके, और इसके बाद अगर मैं चाहूं कि मेरा जो पर्टिकुलर मेथड है या कंस्ट्रक्टर है, वेरिएबल है, वो विद इन क्लास, मतलब क्लास के बाहर भी मैं अलाउ नहीं करना चाहता उसे. ठीक है, उस केस में मुझे क्या प्रोवाइड करना होगा? प्राइवेट. मैं अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर दूंगा. इन दैट केस अगर मैं ट्राई करूं कि यार चलो इसका इनहेरिटेंस कर लेते हैं या इसको दूसरी क्लास में यूज कर लेते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी स्कोप ही डिफाइन कर दी मैंने कि वो विजिबल ही नहीं होगा बाहर किसी को. ओके, इन अ सिमिलर वे हमारे पास प्रोटेक्टेड भी है. तो अब अगर आप आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे, मेनली जो कि जब भी हम फ्रेमवर्क डिजाइनिंग करते हैं, सो दिस इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इन दैट केस वी विल लाइक यूटिलाइज मेथड, वेरिएबल्स, these things in different classes. So in that case we need those methods, we need those instance variables in different classes. So for that आपको accordingly अपना access modifier जो भी है वो define करना होगा क्लास में. ओके, ये प्रोटेक्टेड वाला नहीं समझ में आया, इसकी विजिबिलिटी कहाँ तक रहेगी? इसकी विजिबिलिटी वैसे तो जो है यहाँ पे मतलब प्रोटेक्टेड मैंने भी ज्यादा यूज नहीं किया है. ओके, बट एज पर लाइक डेफिनेशन और व्हाटएवर वी कैन ट्राई, इट्स लाइक विजिबल विद इन पैकेज, जो भी पैकेज है, और पैकेज के अंदर हमारे पास सब क्लासेस हैं. ठीक है, पैकेज हम कहते हैं किसको है, अगर मैं बात करूं पहले तो पैकेज ये है. अगर आप जब यहाँ जाते हो, राइट क्लिक करते हो, यहाँ आते हो, आप देख रहे हो पैकेज इट्स लाइक अ फोल्डर. इनसाइड अ फोल्डर वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ क्लासेस. ओके, सो उस पर्टिकुलर, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक और फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर में भी मैंने कुछ और मेथड्स किए, तो अगर मैंने प्रोटेक्टेड कर रखा है तो इस पर्टिकुलर पैकेज 1 की विजिबिलिटी पैकेज 2 पे नहीं मिलेगी आपको. ठीक है, पैकेज इट्स लाइक अ फोल्डर आपका, यहाँ पे उसको पैकेज बोल रहे हैं, आपके माइट बी डिफरेंट आईडी में उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें. ओके, बैक आना स्लाइड पे 1 मिनट के लिए. स्लाइड ये देखो, डिफॉल्ट का समझ में आ गया है कि विद इन द पैकेज एंड जो क्लास है उसके लिए डिफॉल्ट मतलब विजिबल होगा. ठीक है, प्राइवेट डिक्लेरेशन इज विजिबल विद इन द क्लास ओनली. इसमें मतलब डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है. किसमें? इसको एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, आपके पास आईडी है? सॉरी, हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ, इंस्टॉल किया था बट वो जावा होम का सेट. Okay, not an issue on that. We can do one thing, like after this session I will share all the programs whatever we discussed here, right? उसके बाद आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, जैसे अभी बात करी कि हमने हटा के देखा, ठीक है, आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफायर्स लगा के और आप उसकी विजिबिलिटी खुद चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम जाते हैं तो क्लैरिटी हमें नहीं मिलती कई बार. ठीक है, जैसे अभी अगर हम बात कर रहे थे कि अगर नहीं हमने लगाया था तो क्या होता. ठीक है, अगर हम लगा के ना देखते तो हमें पता भी ना चलता कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा, राइट? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स यू कैन ट्राई
your own and define like कि पैकेज क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि पैकेज क्या है. पैकेज के अंदर 2-3 क्लासेस करी, ठीक है. उस क्लासेस के अंदर एक और पैकेज बनाया, उसके अंदर क्लासेस करी. ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस. बिकॉज थियोरेटिकली तो आपको हर जगह मिल जाएंगी चीजें, बट राइट नाउ आई एम मोर फोकसिंग ऑन दी प्रैक्टिकल पार्ट, कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप खुद से हैंड्स ऑन करोगे और चीजों को देखोगे कि क्या हो सकता है आउटपुट. राइट. लास्ट क्वेश्चन, ये जो पब्लिक सबसे लास्ट में पब्लिक आपने बताया है, ये मतलब हर जगह हर क्लास के अंदर 2 या 3 पैकेज हैं? हाँ, वो हर जगह visible रहेगा? वो हर जगह विजिबल आपका रहेगा. करेक्ट. तो आप, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एक काम करना, अपने प्रोजेक्ट में आप डिफरेंट पैकेजेस, इट मींस डिफरेंट फोल्डर बना लेना, डिफरेंट क्लासेस कर लेना, और उसके बाद इस तरीके से करके देखना कि हाँ क्या किसकी विजिबिलिटी कितनी है, so that you can also get to know that public real time example क्या है. Because in future might be in the Java interview they can ask the difference between public, private and protected. So definition wise तो आप बोल दोगे, लेकिन अगर आपने real time करा होगा उस चीज को खुद से hands on, तो आप directly example भी दे सकते हो. जैसे अभी हमने example right now session में किया, in a similar way you can do it by yourself, right? Okay, fine. और श्रीकांत, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि जो आपने डिफॉल्ट और पब्लिक बताया है, तो हम डिफॉल्ट हमारा लाइक उसको हम पब्लिक ही बोलेंगे ना, कि अगर हमने कुछ नहीं उसके आगे कोई भी मॉडिफायर लगाया है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक, तो बाय डिफॉल्ट हमारा वो पब्लिक ही रहेगा. हाँ, वो ऐसा बोल सकते हैं? वो आप ये बोल सकते हो, क्योंकि उसका क्या है कि एक तरीके से आप ये समझो कि एक प्री डिफाइंड सेट है, ठीक है, कि अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो हम बाय डिफॉल्ट आपको जावा, अगर आप अभी कंस्ट्रक्टर देखोगे, कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्टर दो या ना दो, अगर नहीं भी देते हो तो जावा प्रोवाइड करता है. ओके, सो इट्स लाइक इनबिल्ट, आपको पहले से ही वो प्रोवाइड होगा. ऐसा नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा कि डिफॉल्ट. ओके ओके ओके, फाइन. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें. हाँ जी. ओके, फाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक है जावा ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर्स क्लियरली आई थिंक समझ आ गया होगा कि what is the meaning of operators. It's like operators are symbols that performs operations on variables and values. वेरिएबल्स क्लियर हो चुका है, वैल्यूज क्लियर हो चुकी हैं. अब हमें बस ये देखना है ऑपरेशन करना है. ऑपरेशन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हैं. यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स के लिए हैं, आप अगर गूगल करोगे डिफरेंट टाइप्स और भी मिलेंगे, ठीक है. हम उन पे फोकस कर रहे हैं जो हमें मेनली रिक्वायर्ड है, अपने ऑटोमेशन में माइट बी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, सो दैट हमें पता हो कि क्या क्या चीजें हमें कवर अप करनी है. माय होल ऑब्जेक्टिव इज लाइक आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ द जावा concepts which are mainly required in the automation. I am not here for teaching entire Java. If we are like focusing on the entire Java, it might take 3 months, 4 months, right? So my main focus is on those topics which we are frequently using while creating any automation framework or while working on automation projects. Okay, so arithmetic operators, assignment operators, relational operators and logical operators. चीजें डेफिनेशन मतलब इसके नाम से ही क्लियर हो रही होंगी आई थिंक सभी को, कि अर्थमेटिक क्या होगा, असाइनमेंट क्या होगा, रिलेशनल क्या होगा, लॉजिकल क्या होगा. फिर भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है. यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशंस के लिए आप गूगल कर सकते हो, यू कैन गो इट. ओके, सो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लाइक अर्थमेटिक है तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है. जैसे यहाँ पे मैंने क्लास बनाई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वेयर आई हैव डिफाइंड 2 वेरिएबल्स a and b. Value of a is 12 and b is 5. Now I am trying to utilize all different kinds of operators and I am here checking the output. So first of all I am checking with a plus b, a minus b, a multiply b, and here you can see modulus and the divide one. So you can get the idea how these arithmetic operators are working, right? Got it? Yes. I can share this particular program with you also so that you can execute it, or I personally suggest that you can write this particular program or whatever programs we are discussing here, you can write by yourself so that you can get more clarity.
Otherwise you will just copy paste and execute it. You will not understand the exact things, and you will not remember we have to write system.out.println in order to print the statement in the console. So after doing this particular activity, at least you will be able to understand what things we have to take care while writing the programs. Okay. Next one is the assignment operator. So assignment operator, here we have used one particular variable, integer a, and its value we have defined as 10. We have b and integer c. We have three values here. Now we are assigning the values, assignment operators. So here c is equals to a. It means we are providing the value of a into c. So first one is system.out.println c equals to a. We are providing 10 into c. So output of first statement will be 10. Now second one is b plus equals to a. So how it will work? It will add b plus a. If you will try to do this activity, it will give the output as b plus a. So what is the value of b? B is 20. Sorry, b is 20 and plus statement is there, then a. Current value of a we can see 10. 20 plus 10 is equals to 30. Third one is b minus equals to c. So it's like b minus a. So b value is 30 because we have already do the assignment of b earlier in the above statement. So b minus a, it's like 30 minus 10, it returns 20. Next one is b multiply a. So b value is 20 right now into a is 10, so 200 output. In this way we are getting the output. Are you getting this thing? Hello? Yes, Shrikant, yes. So I think these operators are now clear to you. These are the very basic. So I don't want to invest more time on the operators part. I have written the added screenshot of the particular program itself. Nidhi, this is clear to you? Yeah, yes, Shrikant. Okay, fine. Okay, next one is the relational operators. So relational operator, it means we are comparing, right? So we have defined a and b. Int a as 10, int b as 20. In the first statement we are checking a equals to b. So it will always give either true or false. So a equals to b. A is 10, b is 20. It is not equal, so it will return false. Next one is a not equals to b. So a is not equals to b. This is correct, so it will return true. Next one is a is greater than b. A is 10, b is 20. This is not the correct statement, so it will return false. Next one, a is less than b. B is 20, a is 10. Correct, so it will return true. Next one, a is greater than equal to b. So a is 10, b is 20, and a is first of all not greater than b and not equal to b. So it will return false. And the last one will return true. So I hope these relational operators are also clear to you. Right? Shall I proceed? Yes. Okay. Next one is the logical operators. So logical, here we can say and, or we have these types of operators in the Java, which we generally use while doing the while scripting our test cases, and where we have conditions and we need to give the return as per the different conditions. So here and condition or condition you can see. So first of all, int a we have defined as 15. A is less than 10, first statement. So a is 15 and it is less than 10. This is not correct. And a is 15 which is less than 20.
So this is correct. One is correct, one is incorrect. So output is false because AND operator is there. In case of AND operators, we need both conditions should be true. Then only result will be true. Otherwise, result will be false if any of the condition is false. Rajesh, got it? Yes. Okay, fine. So next one is the OR operator. Here you can see, first of all, first condition is false, second condition is true. So either one is true, either one or two. So in this particular example, first one is not correct, second one is correct. So here OR operator is we have used, so the return will be true. Third statement is the NOT, where we have used A is less than 10, and we have like mentioned this is as not. Okay, AND operator we have used, and A is less than 20. So here both the conditions are true. So that's why output is true. In the example also, you can, in the console you can see false, true, true. Okay, so here you can get the idea. Like in case of AND operator, we need both conditions should be true. In case of OR operator, any of the condition is true, then we will return as true output. Okay, now we can proceed further. Hello. Yes, yes. And last one condition for NOT Okay. operator. Mm-hmm. A less than 10, this is 15 true, right? Okay. 15 less than, sorry, A less than 10 and A less than 20. Okay. True. Okay. So Rajesh, here you have to think from NOT operator point of view, and it is just the opposite of first one. You can see first one is A is less than 10. This is not the correct statement, and A is less than 20. This is the correct statement. So overall output is false, and here outside the overall output we have mentioned not. Then it will be true. Got it? Okay, thanks. If you want, I can execute the program for you. No, I understood. Okay, okay, fine. So now objects and classes, right? So we are waiting for these two things from the starting of the session. अभी तक हम classes भी देख चुके हैं, objects भी देख चुके हैं, जितने भी examples हैं. बट अभी यहाँ देख लेते हैं डेफिनेशन से, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, जो न्यू कीवर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट एग्जांपल में, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके, सो जावा सभी को पता है, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट. कोर कॉन्सेप्ट ऑफ जावा of object oriented approach is to break complex program into smaller objects, correct. कोई भी प्रोग्राम होगा, आप क्या कर सकते हो, आप पूरा का पूरा एक ही क्लास में मल्टीपल क्लासेस भी आप डिफाइन कर सकते हो. एक ही क्लास में आप सपोज नंबर ऑफ लाइंस कितना भी कोड कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी वी ऑलवेज प्रेफर दैट वी शुड राइट इन methods, in small methods. We should write in different classes. So whenever we you will do the automation and you will take part in the automation framework, you will get to know that you have to write different classes, you have to write different methods, so that code should be less complex for everyone. So in this, the core approach of Java object oriented is to break complex program और प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट क्या है इस पे बात करते हैं. बहुत सुन लिया, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, क्या है ये देखते हैं. एग्जांपल पहले लेते हैं. स्कूल में थे, एक क्लास थी, क्लास में 10 स्टूडेंट थे, ठीक है. तो जो एक क्लास है वो हमारी एक्चुअल में जावा में क्लास है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं. माइंड में ये एग्जांपल अभी सेट कर लो, सो दैट इन फ्यूचर जब भी डेफिनेशन भी बतानी पड़ी किसी को, तो
एक एग्जांपल माइंड में रहेगा कि हाँ क्या होता है, मतलब क्या एग्जांपल है मेरे पास, और उससे डेफिनेशन याद करने में इजी रहता है। सो डेफिनेशन वाइज, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, लाइक अ डॉग। डॉग एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं या क्या उसके एक्शंस हैं, क्या है, एक डॉग का कलर हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है इट्स अ ब्लैक कलर डॉग। वो क्या कर सकता है, उसके डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं, सपोज बार्किंग, बार्किंग इज अ एक्शन ऑफ अ डॉग। सो हर एक क्लास का एक जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका कुछ एक्शन, उसके कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही हम एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिकनेस होती है। इट्स लाइक हम ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट 1 में कुछ चेंजेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट 2 में भी चेंजेस हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट 3 में भी चेंजेस हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, सब अपने अपने में इंडिविजुअल है, ठीक है। क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट्स लाइक जो भी चीजें हमें अपने ऑब्जेक्ट में चाहिए वो सारी चीजें हमें अपनी क्लास में प्रोवाइड करनी होंगी। सपोज अगर हम एक ऑब्जेक्ट में चाहते हैं कि हमारा एक जो एक्शन है, सपोज डॉग एक हमारी जो भी एक क्लास है जिसको मैं बोलूं, उस क्लास में मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए बार्किंग मेथड, कि डॉग या जो भी आपका पपी है वो आपका भौंकता है, हिंदी में बोले तो। अगर मुझे वो चीज चाहिए ऑब्जेक्ट में तो वो मुझे क्लास में मेंशन करनी होगी, राइट। सो इन अ सिमिलर वे हमें क्लास में क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है उसके बारे में बात करते हैं। बिफोर वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन द क्लास। इनसाइड द क्लास वी डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर which must be present in the object. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा कोई मेथड या ऐसा कोई आप वेरिएबल आप चाहते हो एक्सेस करना जो क्लास में ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करते हैं रियल टाइम एग्जांपल में, थोड़ा प्रोग्रामेटिकली, सो दैट यू विल गेट आइडिया। फ्रॉम अ सिंगल क्लास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, पहले ही बताया। ऑब्जेक्ट is also called as instance of a class. हर अलग अलग जगह आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बोलता है, कोई इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बोलता है, तो देख लेना उस अकॉर्डिंग। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंसिएशन। कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलता है, कोई इंस्टेंसिएशन कहता है। सो यहाँ पे दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, पहले ही बता दिया है। Any modification done to one of the instance does not affect on other. Suppose n number of objects मैंने बनाए तो उनका इम्पैक्ट, एक ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये है मेरा प्रोग्राम। यहाँ पे पहले यहाँ तक अभी ऑब्जेक्ट या क्लास, इसका बेसिक आइडिया मिला सबको कि नहीं मिला? निधि, हनी, राजेश? Yes, Shrikant, we are good with that. राइट। सो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि है क्या, क्योंकि आई थिंक हमने ऑलरेडी इतने एग्जांपल्स कर लिए हैं कि हमें क्लास के बारे में पता चल चुका है, ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं ये भी चीज पता चल चुकी है। बस हमें एक डेफिनेशन चाहिए थी कि डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, वो भी हमने यहाँ कर लिया। अब ये एक लाइव एग्जाम्पल है जिसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्लास मैंने बनाई है, क्लास का नाम ही जावा क्लास रखा है, वाह, ठीक है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स दिए हैं, एक स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट स्कूल है, ठीक है। ऐसा ही होता है क्लास में, हर स्टूडेंट का नाम होता है, उसकी कुछ एक आईडी, इट मींस रोल नंबर, और उसका स्कूल का नाम जो भी है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमें पता है कि हमें करना ही है। ये जो स्टेटमेंट मैंने जावा क्लास JC1 लिखा है इज इक्वल्स टू न्यू जावा क्लास, ये सिंटेक्स है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पार्ट है, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे JC1 जो है वो हमारा एक वेरिएबल है जिसको हम यूज करेंगे अपने इन वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए। यहाँ पे हमने कोई भी मेथड नहीं डिफाइन किए हैं, राइट। यहाँ सिर्फ हमारे वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, इंट वेरिएबल नेम, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, गॉट इट। नाउ आप देख रहे हो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट करे हैं, सिंगल क्लास से दो ऑब्जेक्ट, जो हमने बात करी थी, वन क्लास कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई किसी का ऐसा नहीं होगा इंटरफेरेंस कि मैंने एक की वैल्यू रखी तो दूसरे की अपने आप वो हो जाएगी। दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, JC.StudentName श्रीकांत,
jc dot student id roll number जो मैंने यहाँ लिखा mention 36. now jc dot school name kv. second object jc2 we have, because we have created two different objects, so we can provide two different values. now jc2 dot student name Ansh, jc dot student id 05, jc dot student school Oxford International. so you can see these are two different objects, और दोनों ही objects की जो भी हमने वैल्यूज प्रोवाइड करी वो डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि jc2 में jc1 का नाम आ जाए, या jc2 जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसमें हमारा स्टूडेंट की आईडी आ जाए. इट्स लाइक टू डिफरेंट. देख लेते हैं आउटपुट में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो हम बात कर रहे हैं. सो इन द आउटपुट system.out.println first student, you can say first student info jc dot student name, jc dot student id, jc dot student school. in a similar way jc1 jc2 I have mentioned and executed the program. you can see the result, right? first student info Shrikant, roll number 36, school name KVIT Kanpur. second student info Ansh, roll number 5, school name Oxford International. so here you can see we can create n number of objects, we can provide different values to different objects. it will not impact to any of the instance of a class, right? अभी कुछ डाउट, कुछ समझ नहीं आया, ऐसी कोई चीज इस एग्जांपल में? तो मतलब समझ में आ गया, मतलब एग्जांपल समझ में आ जाता है, बट जब वो डेफिनेशन वगैरह देखते हैं तो वो अजीब सी समझ में आती है, वो उनसे समझ में नहीं आता है. हाँ, तो आपको यानी आपका पॉइंट है डेफिनेशन पे, राइट? नहीं, मतलब बता रहा हूँ मैं. हाँ, नहीं राजेश, यहाँ पे हम एग्जैक्टली मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी को कोई भी चैलेंज हो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स, वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो डेफिनेशन पॉइंट पे भी मैंने यहाँ पे इसलिए एक बेसिक डेफिनेशन दी है कि एक ऑब्जेक्ट में क्या चीजें चाहिए होती हैं. अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसे बोल रहे हैं? जो JC1 हमने बोला, ठीक है, JC1 को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. JC2 को हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं. अब यहाँ पे अभी हमने वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे हम अपना मेथड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. और मेथड जब हम प्रोवाइड कर देंगे तो उस मेथड को हम अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे, ठीक है. यहाँ पे जो बातें मैंने लिखी हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगी, ठीक है. प्रॉपर्टीज यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट JC1 था, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी थी नेम, दूसरी प्रॉपर्टी थी आईडी, तीसरी प्रॉपर्टी थी स्कूल नेम. तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज. उसका बिहेवियर क्या है? अभी अगर मैं मेथड बना दूं, ठीक है, तो मेथड एक तरीके का बिहेवियर हो जाएगा इस क्लास में. अगर मैं बोल दूं कि ईट, एक ईट मेथड हो गया, क्योंकि स्टूडेंट तो खाएगा ही खाना, लंच तो करेगा ही, तो वो एक एक्शन हो गया ऑब्जेक्ट का, मैंने वो डिफाइन कर दिया. तो अगर मुझे वो एक्शंस परफॉर्म करने हैं स्टूडेंट को, अगर JC1 को वो एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो वो एक्शंस, वो मेथड्स या वो प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स मेरी क्लास में होनी चाहिए. वही चीज यहाँ मेंशन है, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट. उसकी कोई स्टेट होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एंड बिहेवियर, फंक्शनैलिटी. सो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली आप ये एग्जांपल माइंड में सेट कर लो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज भाई नाम हो गया, उसका स्कूल कहाँ है, या उसकी आईडी जो भी हो गई, वो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई. अब वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, ये भी ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है. अगर मैं JC1 बोलूंगा ईट, तो JC1 ईट करेगा, JC2 कहूंगा तो JC2 ईट करेगा. तो ये हमारे मेथड्स हो गए, फिर वो एक्शंस हो गए हमारे, ठीक है. अब वही बात मैंने क्लास में लिखी है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? अगर स्कूल में पढ़ा हो, स्कूल में होता था ब्लूप्रिंट रिलीज हुए हैं, किस चीज के ब्लूप्रिंट की? पेपर में आएगा क्या, कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, ऐसा ब्लूप्रिंट निकलता था. मतलब मेरे स्कूल में निकलता था, तो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल. इन अ सिमिलर वे कि ब्लूप्रिंट निकला, यानी कि सपोज चैप्टर 1 से 10 आएंगे, चैप्टर 2 से 20 आएंगे, अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन करते थे कि भाई चैप्टर 10 से इतने मार्क्स का आएगा. तो वो एक ब्लूप्रिंट हुआ, यानी कि जब मेरा एक्चुअल पेपर आएगा तो उसमें सच में 20 मार्क्स की ही चीजें होंगी उसमें, ठीक है. इन अ सिमिलर वे क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बिफोर वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन द क्लास. इनसाइड अ क्लास हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सारे बिहेवियर, यानी सारे एक्शंस, मेथड अपने
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हम क्लास में डिफाइन करते हैं. ओके, सो आई थिंक इस एग्जांपल के थ्रू और इस बेसिक डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, और अगर आप जैसे खुद से एक बार इसमें और भी हैंड्स ऑन करोगे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग ट्राई करोगे, सो शायद आपको कुछ और चीजें भी पता चलेंगी. राइट? हनी, निधि, आपको कोई डाउट यहाँ पे? No, Shrikant. I am okay. Okay. So now we can discuss one more thing here. ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है? अभी तक हमने बात तो कर ली कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, सारी चीजें सही हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसका रेफरेंस उठाया, उस रेफरेंस से हमने अपने इंस्टेंस कॉल कर लिए, अपने मेथड कॉल कर लिए. लेकिन भाई हमारा ये काम कर कौन रहा है? ठीक है, सो JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट ही होते हैं हमारे हीप मेमोरी में जाते हैं. ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट भी मैं एक सेशन रख लूंगा छोटा सा, जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरीज के बारे में एटलीस्ट डिस्कस कर लेंगे. कई बार क्वेश्चंस आते हैं, पुटअप होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरीज वी हैव एंड क्या डिफरेंसेस हैं. तो बेसिक डिफरेंसेस के लिए हम डिस्कस कर लेंगे. आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जावा क्लास JC1 इज इक्वल्स टू न्यू जावा क्लास, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में लिखा था, एग्जीक्यूट होता है. वन इंस्टेंस इन द हीप मेमोरी विल बी क्रिएटेड, और वो हम किससे एक्सेस कर सकते हैं? JC1 से. एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी नीड टू प्रोवाइड द रेफरेंस, लाइक हियर JC1 हमने प्रोवाइड किया है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए JC2 प्रोवाइड किया है. अदरवाइज ऑब्जेक्ट बिकम एनोनिमस. इसका मतलब कि हम, अगर हमारे पास रेफरेंस ही नहीं होगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम उसके मेथड्स कैसे कॉल करेंगे? हमें कॉल करने के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, कुआं है, कुएं से पानी निकालना है, तो बाल्टी चाहिए ही चाहिए. बाल्टी नहीं होगी तो पानी है, हमें पता है पानी है, लेकिन हम ले नहीं सकते. इन अ सिमिलर वे ऑब्जेक्ट बिकम एनोनिमस. विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, JC1 is the reference, we can access the instance of class from heap memory. Heap memory is like जो वेल है हमारा, जो कुआं है, कुएं से पानी निकालना है, पानी निकालने के लिए रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस बाल्टी है. ओके, समझ आया थोड़ा सा? Yes, but we need one more session for heap memory because we are not able to understand what is heap memory and how to. Yes, we can plan one session where we will discuss about different type of memories. Even though from this QA point of view, it is not mandatory to go in depth, but yes, we should have some basic knowledge about different memories so that we can answer about the differences between memories. Okay, so as of now we are good. Yes. Any questions right now apart from this, like whatever session, like in this session we have discussed, anything? And in No, like yes, Rajesh, you can go ahead. Just a small question, like suppose like हमने वो JC1 वो डिक्लेयर करते, एक तरीके से ये मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक तरीके से नेम ही हो गया, रेफरेंस हो गया, मतलब उस नाम से हम जान पाएंगे. राइट? करेक्ट. जैसे हम अपने नाम से जाने जाते हैं, हमारा भी तो मतलब, अब अगर किसी को एक्सेस करना है हमें, ठीक है, तो बुलाएगा श्रीकांत इधर आओ, ठीक है, नाम ही नहीं पता होगा तो क्या बोलेगा? राइट? सो इन अ सिमिलर वे ये रेफरेंस मतलब नाम है. ठीक है? And any more doubts? Anything you want to share? Hani, Raj, Nidhi? Yes. Or we can No, like Shrikant. good to go and we can wind up this session? Everything is fine? Okay. Yeah, Fine. everything is Yeah, fine, Shrikant. Shrikant. We will As try of our now, I am event. good with that. Okay. I hope all of you have learned something from this session, and after these sessions we have some more sessions on the Java, then we will move on the automation with the Selenium. So I'm just trying to give you basic idea so that you can like focus right now on Java, and later on you can focus on the automation side. Okay, because one language. Shrikant, one question. Yes. Yeah, sorry for interruption. So in how many sessions we can complete the Java? Right now I think I have mentioned and I have released the list
around 7 to 8 sessions we have. Okay. Yes. Then after we will move on Selenium, is it? Yes. Actually, I am planning to start Selenium and Java in parallel after some time. Once you guys are comfortable on the Java side, and I feel that you are able to understand each and every basic concept of Java, then I will start basics of automation, so that in parallel we can get the information of both the things, Java as well as automation. I don't want that you will first learn Java and then you will start on the automation, and when you will start on the automation you will forget the concepts of Java. I just want to be in a sync, that you should actually understand where we are utilizing Java concepts in automation. Okay, so once I feel that you guys are comfortable in Java and you are able to understand each and every concept, then I will start. I can see tomorrow's timing is like 10 to 12:30. Is it kya? Yes. It is tomorrow 10:30. Correct. Okay. And any possibility to reschedule the timing, because in morning something messy for me. If everyone is comfortable, if not, so we can manage. So some like all of you are already available here, so you can suggest the timings so that we can plan. Actually, Nidhi, I was planning 2 sessions tomorrow, but I think it is not possible if we skip the first one, right? So it's on you guys, because I'm more focused on delivering as much as content for you, and you are able to understand and you can like start automating things and at least start giving the interviews, right? So it's on you. If you are like everyone is available in other time slot, just let me know so that I can reschedule it. Yeah, sure. So Rajesh, what's your preferable slot? So Nidhi, you can tell what time is Yes, I think what time will be Nidhi, appropriate for you. yes. So if possible for everyone, we can connect around 2 to 5, if okay for everyone, because I have families, I have to manage. Okay, not an issue. And Morning breakfast to lunch. So these sessions not are an for issue you from guys. my side. Yeah, so not an issue, big issue from my side, because I need everyone's comfortable. So if everyone is okay with that slot, so we can join 2 to 5 or 5:30, whatever. Okay, so फिर कल एक ही सेशन रहता है निधि के हिसाब से, तो एक ही रख पाएंगे ना फिर हम? इन दैट केस थोड़ा सा क्लब करेंगे सेशंस को, मतलब कि जैसे 2 to 5:30 ऐसा करते हैं, और बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ऐसा कुछ करके, राइट? At least we can try as much as we can cover, and it is important that you all guys can attend this session and you can like understand the upcoming sessions, because now this is the first session and this is the basic one. From tomorrow onwards session might be complex one, so I don't want anyone that you go and watch on the YouTube and then come back for the next session. Okay, so that's why. So yeah, I think sure. So I will ping on group also. Yes. If any changes, so I will ping on group also. So I need comfortable for everyone. Okay. So 2 to 5:30 is fine for everyone. Yeah, it's good for me, Shrikant. I'm okay with that. Okay, and Raj? Okay, Shrikant. Okay, fine. Anyone else? Okay, fine. Then I will schedule it for 2 to 5:30. We will see how much we can cover in the session, and after that in next week we can cover it anyhow. Okay guys, thank you for joining this particular session, and I hope you have learned so many things, and in upcoming sessions you will learn something more. Thank you for your time. Bye, take care. Thank you so much, Shrikant. Thank you, Shrikant. for providing. Okay. Bye. Thanks, Shrikant. Bye.